हेलो डियर व्यूअर्स, एस्पिरेंट्स। हमारे साथ में हैं वन ऑफ द यूपीएससी टॉपर्स ऑफ दिस ईयर, अफजल अली, एंड ही हैज़ क्वालिफाइड एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी मार्क्स इनके हैं। ज्योग्राफी में ही हैज़ स्कोर्ड 295 एंड वेरी इंकरेजिंग मार्क्स इन हिज इंटरव्यू ऑल्सो 179। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट हिज प्रिपरेशन इज ये इनका थर्ड अटेम्प्ट है। पहले अटेम्प्ट में ही वेंट ऑल द वे टू इंटरव्यू बट मिस्ड आउट नैरोली बाय फ्यू मार्क्स, और सेकेंड अटेम्प्ट इनका प्रीलिम्स ही नहीं हुआ, एंड थर्ड अटेम्प्ट ही फाइनली मेक्स इट। सो लेट्स हियर हिज जर्नी, हिज प्रोसेस, what was his approach, and I'm sure all of you can learn something from that. So welcome in this small discussion conversation. Aapko mubarak ho, congratulations Afzal. Thank you so much, sir, for having me here in EduChemie. I feel privileged to be here and talk to you all. And Sabir sir and EduChemie has helped me a lot, especially in optional, because in my first attempt when I reached to interview, I had scored 228 marks in geography optional, and in this year I got 295. So the increment of 67 marks is what ensured my rank in the final PDF. So certainly, although my performance in other papers declined, like my performance in GS and interview is not as good as it was in my first attempt, but in optional it was exceptional. So I feel really very happy to be here to share my experience. Yeah, Afzal, thank you so much for saying that. I always say पढ़ाते तो हम बहुत बच्चों को हैं, okay, but yes, some of the students go the distance. It's our privilege and pleasure to have you here. I'm happy that the course helped you. Tell us about your journey. कैसे शुरू हुआ आपका IAS का aspiration? What was the trigger that started off your journey? मेरी स्कूलिंग जो हुई वो सैनिक स्कूल नालंदा से हुई, जो बिहार में ही है। तो क्लास 12th में मैंने NDA का एग्ज़ाम दिया था। तो NDA में मुझे 2017 के NDA NA एग्ज़ाम में 105 रैंक आए थे, एंड आई वाज सिलेक्टेड टू अंडरगो ट्रेनिंग एज अ लेफ्टिनेंट इन नेवल एकेडमी इडीमल्ला, but I couldn't join that due to some reasons. So but around 10 of my friends, my schoolmates, batchmates joined that. So I had this trigger, this motivation that I have to do something big in life, because at the age of 17 in class 12th I had cleared that exam in my first attempt. So, and UPSC is something big which a lot of students look up to, and I was no exception to it. So I also started looking to crack this exam since class 12th only. So I got enrolled into Banaras Hindu University and I pursued geography honors. So from 2017 to 2020, for 3 years my graduation happened. In 2021 I gave my first attempt, and in that I reached up to interview, and in final merit I was out by 3 marks. Oh, so that was very narrow, yes, disheartening. In 2022 I couldn't clear prelims, but in 2023 when I gave prelims, my score in prelims was very decent. It was close to 115, and this year I have secured 574 rank. So I may get IPS or IRS. So this is how the journey has been, and I feel very privileged and fortunate that apart from my hard work, luck has also been in my side, and it has helped me. Yeah, Afzal, very modest person that you are. Very humbling to hear that you have gone through the process of not clearing one prelims and then coming back, bouncing back. So overall ये बताइए कि आपके प्रिपरेशन में आपका मेन चैलेंज क्या था? Was it around course completion? Was it about how to remain focused? Was it about dealing with the maybe a history of failures? आप क्या सबसे ज़्यादा जूझ रहे थे? मेरे लिए सबसे बड़ा मुश्किल यूपीएससी प्रिपरेशन टाइम में ये था ना कि मेरे पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस थे, जैसे कि मैं और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स को निकाल सकता था और निकाल भी रहा था। जैसे हम जब बनारस में थे तो मेरे ग्रुप था 5-6 लोगों का, जो हम लोग साथ में कोचिंग करते थे, एसे राइटिंग करते थे। तो उसमें से सारे के सारे दोस्त कहीं ना कहीं सेटल हो गए, कोई ना कोई और एग्ज़ाम निकाल के। तो मेरे को भी एक टेम्पटेशन था कि मैं भी उधर चला जाऊँ। तो और जैसे मेरे पापा भी हमेशा ये कहते थे कि यार उनका हो गया वो एग्ज़ाम में, तो तुम भी कर लो ना।
तो मैं उन्हें बताता था कि यार मैं कर लूँगा, लेकिन अभी थोड़ा सा पेशेंस रखे, अगर मैं थोड़ा वेट करूँ तो शायद बहुत बेहतर हो जाएगा, मतलब यूपीएससी हो जाएगा। तो सबसे बड़ा वो था कि इस टेम्पटेशंस को कंट्रोल में रखना है कि कुछ और जो मुझे मिल रहा है अगर मैं उधर से, जैसे हाँ, जैसे जेआरएफ बहुत सारे दोस्तों का हो गया और कोई एसएससी में चला गया। तो नहीं, ये प्रॉब्लम अफजल सबके साथ होती है कि जब जो भी आता है एग्जामिनेशन प्रिपेयर करने के लिए वो कुछ ना कुछ छोड़ के आ रहा होता है। एंड दिस इज राइट, इफ़ यू कैन डील विद दैट टेम्पटेशन कि एक शॉर्टकट है वो निकल जाएगा, या फ्रेंड्स जा चुके हैं उधर ना जाऊं मैं, इफ़ यू कैन होल्ड योर सेल्फ देयर, आई थिंक दैट्स गुड दैट यू रियलाइज दैट। यस। तो व्हाट मोटिवेटेड यू कि नहीं मैं इसमें लगा रहूँगा? वॉज इट फेथ इन योर सेल्फ, या फिर क्या हु वॉज हेल्पिंग यू कि नहीं डिस्ट्रैक्ट मत हो, इसी पे लगे रहो? इसमें दो चीज़ें, पहला तो ये था कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में जो मैं इंटरव्यू तक चला गया था तो मुझे लगा कि यार ये हो जाएगा, मतलब देयर वर इंस्टांसेस वेयर आई फेल्ट सेल्फ डाउट, बट पहला वो था। और दूसरा ये भी होता है ना कि जब आप यूपीएससी में बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हो ना, तो यू आर गुड ओनली फॉर यूपीएससी, समटाइम यू रियलाइज। मतलब ये मेरे लिए ज़्यादा आसान है कि मैं 1 महीने तैयारी करके प्रीलिम्स निकाल लूँ, कंपेयर टू कि मैं अगर कुछ और करूं। जैसे मैं अगर बीपीएससी का प्री दूंगा तो कम चांसेस है निकालने के, कंपेयर टू मैं यूपीएससी का प्री। तो द क्राउड इन यूपीएससी विच कीप ऑन डूइंग यूपीएससी इज ऑल्सो बिकॉज दे आर गुड फॉर नथिंग एल्स दैन जस्ट यूपीएससी। ओके, स्पेशलाइज्ड इन दैट पर्टिकुलर डोमेन। तो लगता है कि चल इसी को दोबारा कर लें तो और होने का चांस है। तो ऐसा क्या किया था आपने अफजल कि पहले अटेम्प्ट में आप इंटरव्यू तक पहुंच गए थे? व्हाट वाज द स्ट्रेटजी ऑफ प्रिपरेशन? आई थिंक आई वॉज वेरी लकी, मतलब थोड़ा सा लक वाला एंगल भी है कि जैसे प्री निकल गया तो नैरो मार्जिन से मैंने प्री निकाला था, और मेंस में भी मेंस का कट ऑफ लाइक आई वाज ओबीसी, सो थोड़ा सा ऐसे ही ऊपर था, लाइक मेंस कट ऑफ ओबीसी वाज 707 एंड आई गॉट 740। आई वाज लकी आई वुड से। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई ट्राई टू फिगर आउट PYQs, लाइक मैंने PYQs पिछले 10 साल के लिख लिए। तो मुझे ये रियलाइज़ हो गया ना कि यूपीएससी रिपीट्स द थीम्स। जैसे बहुत सारे लोग टेस्ट सीरीज में बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, सो अगर आप की एरिया को आइडेंटिफाई कर लें और उस पर ज़्यादा काम करें तो थोड़ा और शॉर्टकट है। तो प्रीवियस ईयर्स को मैंने बहुत ज़्यादा वो किया था। PYQ सिलेबस में आपको बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कमांड हो जाना चाहिए। यू आर राइट देयर। ओके, एंड गलती क्या हुई थी आपके सेकंड अटेम्प्ट में, आपका प्री नहीं निकला? Sir, my interview on my first attempt was on 26 May 2022 और रिज़ल्ट आया 30 मई को, मतलब 26 मई को मेरा इंटरव्यू था, 30 मई को रिज़ल्ट आया और 5 जून को अगला प्री था। सो दैट द टाइम पीरियड वाज वेरी लेस। तो वो था एक। और मतलब फर्स्ट टाइम जब मेरा हुआ ना, प्री हुआ, मेंस हुआ, इंटरव्यू हुआ, तो एक अलग ही लेवल का वो होता है, लाइक बहुत ज़्यादा खुशी। और तो फिर आप दिमाग साथ नहीं रह पाता है, लाइक लॉट ऑफ आदमी तो बहुत ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि यूपीएससी प्रिपरेशन में थोड़ा सा चाहिए, मतलब एक सन्यासी की तरह थोड़ा सा ना अपने इमोशंस को काबू में रख के मेहनत करने की जरूरत, ठहराव चाहिए था, पेशेंस एंड तो आप बहुत ज़्यादा खुशी हो जाओगे, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाओगे, तो फिर रिटेन नहीं कर पाएंगे इन्फॉर्मेशन को। और तो वो था। तो आपके बैकग्राउंड में ये प्रिपरेशन मतलब पॉसिबल था, या कोई फ्रेंड फैमिली जिस माहौल से आते हैं वहाँ पर ये माहौल था पढ़ने का, पढ़ाने का? पिछले कुछ दिनों में जब से ये रिजल्ट आया है तो मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्रेडिट मिलने लगा है कि यू कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड, अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड वेयर आई मीन यू हैव डन इट, एवरीवन हैज़ डन इट, बट आई गेट एक्स्ट्रा क्रेडिट फॉर बीइंग फ्रॉम अ हम्बल बैकग्राउंड। बट आई वुड से दैट्स अ अनफेयर क्रेडिट बीइंग गिवन टू मी, बिकॉज मैं सैनिक स्कूल से पढ़ा, तो सैनिक स्कूल इज़ अनडाउटेबली वन ऑफ द बेस्ट स्कूल इन द कंट्री। सो सिंस माई चाइल्डहुड आई गॉट बेस्ट फैसिलिटीज़। एंड उसके बाद मैं BHU चला गया, तो BHU इज ऑल्सो अनडाउटेबली वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ दिस कंट्री। और आई हैड अ वेरी गुड फ्रेंड सर्कल, सैनिक स्कूल दैट कनेक्शंस, लाइक वी यूज्ड टू हैव एवरी ईयर सैनिक स्कूल गेट टुगेदर, सो देयर सीनियर्स यूज्ड टू कम हु वर ऑलरेडी इन वेरी गुड सर्विसेज। सो लाइक व्हेन आई वाज देयर विद इन दैट सर्कल, दैट हेल्प्ड मी अ लॉट। Like we start dreaming big only by seeing something big. Like even if anyone coming from any place, if he sees something, तो वहाँ से वो आता है ना कि मैं भी कर सकता हूँ। तो I would just say कि I sometimes get extra credit for a lot of things which I like your honesty, अफजल, बहुत honestly, बहुत genuine, with lot of authenticity आप ये कह रहे हो, that no, it was probably the circle you were moving in,
ओके, एंड यू आर राइट। अगर आप एस्पिरेशन लोगों के साथ रहोगे, जो पढ़ने वाले हैं उनके साथ रहोगे या अचीवर्स के साथ रहोगे, तो डेफिनेटली योर डिज़ायर, योर ड्रीम्स ऑल्सो स्टार्ट चेंजिंग ग्रेजुअली। दैट मस्ट हैव हेल्प यू। ओके, तो ये बताइए कि आपने प्रिपरेशन कैसे किया? व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी फॉर चूजिंग ऑप्शनल? हाउ डिड यू प्लान योर जीएस? ऑप्शनल कैसे चूज़ किया आपने? Since my school days only, I was good in social sciences, like in history, geography, political science. I was good at it. 10th में और 9th में, मतलब 10th तक ही था सोशल साइंसेज, 11th 12th में नहीं था हमारे स्कूल में, तो 10th तक मेरे सोशल साइंस में बहुत अच्छे नंबर आते थे। तो मुझे ये था कि सोशल साइंसेज मुझे पढ़ने में मज़ा भी आता था, तो वो था। और हमारे स्कूल में जो ज्योग्राफी के टीचर थे उनका नाम जयन टी था। ही वॉज फ्रॉम केरला एंड ही वॉज वेरी गुड, मतलब स्टिल वन ऑफ माई फेवरेट टीचर। तो आई वुड से कि ज्योग्राफी में जो इंटरेस्ट था ना वो स्कूल टाइम से ही था। और दोज वर द टाइम 2017-16 व्हेन ज्योग्राफी वाज बीइंग रिवॉर्डेड वेरी हैंडसमली इन यूपीएससी। there was a topper also, I'm forgetting his name. He scored very decent in geography. तो वो था 2007, मतलब 2017 में मैंने डिसाइड किया कि क्या ऑप्शनल लेना है, कैसे क्या करना है, क्योंकि 2017 से मेरा ग्रेजुएशन शुरू हुआ। तो वो एक फैक्टर था ज्योग्राफी को चूज़ करने का, स्कूल वाला फैक्टर। देन दैट टाइम ज्योग्राफी वाज ऑन राइज, सेकेंड फैक्टर। तो मैंने सोचा कि ज्योग्राफी से ही ग्रेजुएशन कर लेते हैं। तो 2017 से 20 तक जो मैंने ग्रेजुएशन किया, तो जो अंडर ग्रेड का जो सिलेबस होता है दैट कवर्स अराउंड 60% ऑफ यूपीएससी सिलेबस। सो वो हेल्प हो गया। फिर मैंने थोड़ा बहुत सीनियर से बात किया, कोचिंग के भी इधर उधर से मटेरियल लिया। मैंने कोचिंग ज्योग्राफी ऑप्शन का लिया नहीं, बट फ्री में जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उसको मैंने एक्सप्लॉइट किया, तो वो हेल्प किया। ओके, तो आपने ज्योग्राफी लार्जली अपने ग्रेजुएशन बैकग्राउंड से पढ़ा, हाँ, और अपने आप ही मटेरियल सारा पढ़ा। ओके, सो व्हाट वाज द रोल ऑफ एडुकेमी? हाउ डिड यू फाइंड अस इन द प्रिपरेशन? हाउ डिड यू फिट इन विद आवर स्कीम ऑफ थिंग्स? वो कैसे हुआ आपके साथ? So like when I gave my first attempt, by then I had just relied on PYQs, but when I got the marks 228, I realized I lacked something big. So I started surfing. So Sabir's Educami is a big brand for geography, so I came to know about this. So I purchased the test series, and test series helped me, especially the handwritten notes and the scheme of writing things in 150 words or 250 words. That is something special about Educami, because other coaching institute try to give things in 400 words, 500 words. So you cannot relate to it कि okay, this is how he had put things in 250 words. So the idea is if you can relate to something, तो वो easy हो जाता है emulate करने में, मतलब copy करने में. So that was one very useful thing. Model answers give an idea about कि अच्छा लिखा जा सकता है 2, 2.5, 3 पेज में. जैसे like I had written around 14 mock tests of Educami. So the 6 days gap between GS and in mains, GS and optional, तो उसमें मैंने क्या किया, जैसे 14 टेस्ट में टोटल अगर अराउंड 300 क्वेश्चंस वर देयर एंड देयर मॉडल आंसर्स, सो आई रिवाइज थॉरली दोज 300 क्वेश्चंस ओनली। ओके, सो दैट वाज बिग हेल्प। दैट रेंज आपको मिल जाता है टू गेट एग्जामिनेशन। अच्छा, ये बताइए आपका प्रीलिम्स और मेंस का प्रिपरेशन का स्ट्रेटजी क्या था? बच्चे इसमें बहुत परेशान रहते हैं, कितना टाइम मेंस, कितना टाइम प्रीलिम्स में। हाउ डिड यू गो अबाउट दैट? Prelims preparation is very sometimes becomes very boring because we have to mug up a lot of facts. So मैं क्या करता था कि जैसे मैं प्रीलिम्स का पढ़ रहा हूँ जैसे दिन में, जैसे अगर 10 दिन बाद भी प्रीलिम्स है तो आज मैंने अगर 6 घंटे प्रीलिम्स का पढ़ा तो आई वुड बी वेरी ड्रेन्ड आउट एंड वेरी बोर्ड। तो मैं 2 घंटे फिर मेंस का पढ़ लूँगा, क्योंकि मेंस इज़ थोड़ा सा कहानी टाइप का होता है ना, मतलब डिस्क्रिप्टिव होता है, सब्जेक्टिविटी होती है, तो मेंस का पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो वो जो फन वाला एलिमेंट है, इफ़ यू कैन मिक्स इट बिटवीन प्रीलिम्स प्रिपरेशन, तो वो ये उसकी यूटिलिटी भी है और आप बोर भी नहीं हो रहे हो, तो ये एक स्मार्ट में करता था। अदरवाइज प्रीलिम्स में मैंने PYQs पे बहुत फोकस किया था, PYQ एनालिसिस और जो भी स्टैटिक पोर्शन है, मतलब स्टैंडर्ड बुक्स हैं। दैट्स हाउ यू वेंट अबाउट इट। अच्छा, आप आते हैं सोशल साइंस बैकग्राउंड से, ज्योग्राफी से किया आपने, तो आपका सीसैट कैसे मैनेज होता था? बिकॉज दैट्स वन एरिया वेयर पीपल आर ट्रबल्ड अबाउट।
personally, in my case, since I also prepare for lots of other government exams like SSC और EPFO और BPSC, और मैंने NDA का भी एग्ज़ाम दिया था, CDS का भी दिया था, तो मेरे लिए वो मैथ्स वाला रीजनिंग वाला एंगल तो मेरा ठीक था। ओके। और फिर कंप्रेhension भी तो CSAT वाज नेवर अ वेरी बिग डील, बट ऑल्दो मेरा जो इस बार आई गॉट 75 इन CSAT, सो 3 क्वेश्चन का ही मार्जिन था, सो आई वोंट से आई वाज very easy, comfortable in it, but आप कितना प्रैक्टिस करते थे? Would you practice properly or you would be confident about your background in general? No sir, I used to practice around 10 mock टेस्ट मैंने दिए थे CSAT के एग्ज़ाम से पहले। और जैसे आजकल टेलीग्राम पे या बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया साइट्स पे CSAT के चैनल्स हैं, ऑन एनी टाइम यू कैन ऑन योर फोन आप 5 CSAT के क्वेश्चन बना लो, तो बिकॉज CSAT हैज़ टू बी प्रैक्टिस ऑन डेली बेसिस, बिकॉज UPSC ने उसको थोड़ा मुश्किल कर दिया है पिछले कुछ सालों से। तो डेली, क्योंकि वो आपके मेंटल कॉग्निटिव थॉट प्रोसेस को भी चेक करता है। पहले होता था कि फॉर्मूले से बन जाते थे CSAT के क्वेश्चंस, अब CSAT के सवाल फॉर्मूले से नहीं बन रहे हैं, तो सोचना पड़ेगा, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। ओके, हाँ, मतलब CSAT के जैसे पहले क्या होता था कि आप टाइम इन वर्क का क्वेश्चन है, तो या फिर कोई है कि एक आदमी इतने दिन में कर रहा है काम, तो वो अब वैसा क्वेश्चन नहीं आ रहा है। अब स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं जहाँ पे ऑन द स्पॉट यू हैव टू अप्लाई योर माइंड, तो वो जब तक। तो आपको क्या लगता है ये CSAT का जो पेपर है, ये फेयर पेपर है, ये होना चाहिए? बिकॉज इस पर बहुत डिबेट्स होती हैं कि अनफेयर है और ये होना नहीं चाहिए, और कुछ लोगों को प्रिविलेज एक्स्ट्रा हो जाता है, एडवांटेज एक्स्ट्रा हो जाता है। आपको क्या लगता है, ऑब्जेक्टिव असेस करें तो शुड UPSC हैव अ CSAT पेपर? So UPSC is called the watchdog of merit system in this country, and UPSC has evolved this system after huge a lot of thought process. So certainly there is merit in it, and any system will be having some flaws and some pros and cons. So certainly it's open to debate and criticism, but I certainly see a lot of merit in it. So certainly UPSC can take some inputs from the public discourse, but it's good. तो होना चाहिए, बट थोड़ा बहुत ट्विक चेंज कर सकते हैं। हाँ, दैट्स। तो पेपर क्या अनफेयरली बहुत डिफिकल्ट था लास्ट टाइम? ओके, या फिर दैट सरप्राइज एलिमेंट इज ऑलवेज देयर, यू शुड रेडी फॉर इट? अब क्या लगता है इसमें? Yes sir, surprise element is always, because 10 lakh people are filling the form and only 1000 has to be. Anyhow you have to weed out the people. Like last year also I failed in prelims, so I cannot blame, because that's how the system works, that's how the life works. So blaming something. आपका एटीट्यूड बहुत अच्छा है अफजल। जैसे you accept and you adapt, you move on. I think that's a very good quality that you have. I don't know if you realize that or not. That probably also helps in a preparation, keep yourself motivated and running along. Excellent. अच्छा, एक और बहुत बड़ा चैलेंज है प्रिपरेशन में, करंट अफेयर्स होता है। Yes. क्या पढ़ें, मटेरियल है, न्यूज़पेपर है, वीडियोस भी हैं, अब बुकलेट्स भी आते हैं। तो आपका करंट अफेयर्स का क्या स्ट्रेटेजी था? हाउ डिड यू मैनेज? So for me, I would say honestly, the most enjoyable part of my preparation was reading the Hindu newspaper. Okay. I enjoy a lot reading newspaper, and I can read 5 newspaper in a go. Like I also read two Hindi newspapers, Indian Express, The Hindu. अभी भी मैं लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ता हूँ, मतलब न्यूज़पेपर पढ़ने में मुझे बहुत मज़ा आता है। ओके, तो मतलब वो तो है, तो मेरे लिए करंट अफेयर्स वाज नेवर एन इशू, बट इन जनरल पेरेंट्स के लिए होता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो जैसे मैं जब 2017 में शुरू किया था, तो मैं थोड़ा, मतलब इंग्लिश तो मेरी ठीक ठाक है, बट थोड़ा हिंदी बैकग्राउंड से होने के कारण, मतलब बाद में मैंने बहुत मेहनत किया इंग्लिश पे, तो ठीक हो गया। बट मुझे द हिंदू पढ़ने में 4 घंटे लगते थे, लेकिन मैं पढ़ता था 4 घंटे, तो अब 1 घंटे में हो जाता है, 40 मिनट में भी हो जाता है, बिकॉज 2017 से अभी कितने 7 साल हो गए, तो वो मतलब है। तो न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, और आप अगर PYQs को एनालाइज करें तो समझ में आएगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिकल न्यूज़ हैं, बहुत सारे देयर इज़ अ टर्म कॉल्ड येलो जर्नलिज्म, फ्लैशी न्यूज़, तो उसको अवॉइड करना है, क्योंकि न्यूज़ को सिर्फ पढ़ने से ना आदमी का मेंटल डिस्कोर्स भी उधर ही जाता है। So there are a lot of news जिसको अवॉइड करना है, just because that will have negative impact on your thought process, okay, which is not healthy for a UPSC aspirant also. You got to fine tune your thought process also, कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है।
सो तो PY का एनालिसिस करके हाँ एक आइडिया हो जाना चाहिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, हाँ और उसके साथ आप पेपर पढ़ते रहें एंड एंजॉय द प्रोसेस। एंजॉय द प्रोसेस एंड फिगर आउट कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो अभी अगर एक क्वेश्चन देखा जाए यूपीएससी प्रिपरेशन में, आपको क्या लगता है करंट अफेयर्स के बहुत कंटेंट है, बुकलेट्स हैं, टीचर्स पढ़ाते हैं, आपको क्या लगता है क्या मिसिंग है? व्हाट इज मिसिंग इन द करंट अफेयर्स प्रिपरेशन जो जेन्युइन होना चाहिए जो नहीं है? एक तो होना चाहिए कि जैसे अगर जैसे हम इफ़ जैसे मेरी बहन है तो मैं उसको बताता हूँ, गाइड करता हूँ कैसे पढ़ना है। तो मैं उसे फ़ोन करता हूँ कि ओके तुमने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा, तो बताती है हाँ। तो मैंने पूछा कि क्या क्या पढ़ा, तो हिस्ट्री विल टेल सम न्यूज़। तो मैं बोलूँगा कि देखो इस सवाल से ना 2017 में एक सवाल आया था इस न्यूज़ से। जैसे उसने बोला कि शी रेड समथिंग ऑन रिवर वाटर ट्रिब्यूनल्स। Okay. आई विल गिव एग्जांपल कि ओके सो दिस इज हाउ any news you read you can relate to it. UPSC has asked some question on this topic some years back. UPSC Okay. may ask in future. तो उससे क्या होगा, रिलेवेंस बनेगा कि हाँ अब जैसे अभी कोई इलेक्शन कैंपेन चल रहा है, तो अब इलेक्शन कैंपेन से हम पढ़ सकते हैं ना कि इलेक्शन कमीशन का क्या रोल है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है। सो एनी न्यूज़ कैन बी यूजफुल ओनली इफ we relate to it, to UPSC content, UPSC syllabus and what UPSC asked. तो आपको लगता है ये चीज़ मिसिंग है? No, it's not missing. I mean, there are hundreds of coaching institutes, so certainly someone would be doing it. But this is where we need to emphasize on. तो Students. जहाँ से ये पढ़ें और जो भी कोर्स फॉलो करें, ये ध्यान रखें कि जो भी पढ़ रहे हैं उसको आप PYQ से मैप कर पा रहे हैं, UPSC के रिक्वायरमेंट से मैप कर पा रहे हैं। दैट्स द स्ट्रेटजी। अच्छा ठीक है। तो आप एक दिन में कितना पढ़ते थे? व्हाट वाज योर आवर ऑफ प्रिपरेशन इन अ डे? So it used to vary. जैसे जो प्रीलिम्स के 4 महीने 3 महीने पहले से तो मैं ऑन एन एवरेज 7 to 8 आवर्स पढ़ता था, और प्रीलिम्स से मेंस के बीच में वो कभी कभी 9 तक चला जाता था। ओके। बट कभी कभी जैसे संडे को कभी ब्रेक भी लेता था, जैसे फुल 1 डे पढ़ाई नहीं करनी। डिड यू हैव अ प्लान कि कब क्या खत्म करना है, एक हफ्ते में क्या करना है? डिड यू हैव अ प्रॉपर लेड आउट प्लान व्हेन यू स्टार्ट ऑफ प्रिपरेशन? नो सर, आई हैड गोल्स लाइक कि अभी जैसे साइंस एंड टेक का जैसे पिछले 10 साल का GS3 का साइंस एंड टेक इतने दिन में ख़त्म कर लेना है। ये होता मतलब गोल ओरिएंटेड कि इतना ख़त्म कर लेना है और इस तारीख तक ख़त्म हो जाना चाहिए। ऐसे मतलब दिन का नहीं होता था, मतलब 4 दिन में ये ख़त्म करना है, ऐसे होता था। ओके, यू हैड अ लॉन्गर टाइम फ्रेम का, एक हफ्ता, 5 दिन, 6 दिन। ओके, एंड उसको आप अचीव कर लेते थे? हाँ, कोशिश होती थी कि ये हो जाए। मतलब आप डिस्ट्रैक्शंस कैसे मैनेज करते थे? दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम मुझे लगता है प्रिपरेशन में। जब 7-8 घंटा पढ़ रहे हो, डिस्ट्रैक्शंस कैसे हैं? फैमिली, रिलेटिव, फ्रेंड्स, मीडिया, सोशल मीडिया, नेगेटिव टॉक एंड ऑल ऑफ दैट। मैं खुद बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे हूँ, तो मतलब डिस्ट्रैक्शन जैसे क्या होता है ना कि जैसे प्री निकल गया, तो प्री के बाद तो अलग ही एक पागलपन होता है ना कि यार मेंस आ रहा है। तो जैसे फियर एलिमेंट ऑफ फेलिंग इन एग्जाम इज समथिंग विच डिसिप्लिन्स यू कि भाई नहीं होगा तो क्या होगा, क्योंकि लास्ट टाइम नहीं हुआ था। तो जैसे लास्ट टाइम जब मुझे प्री नहीं हुआ तो मतलब बहुत ही पेनफुल मोमेंट था। सो दैट फियर डिसिप्लिन्स यू, तो वो था एक। और दूसरा कि अब जैसे डिस्ट्रैक्शंस, एक जैसे अभी जब से मेरा रिजल्ट आया है तो आई फील अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी इन माई सेल्फ। मतलब पहले मतलब खुद से ही वो डिसिप्लिन आ जाता है, मतलब जब लाइफ में अच्छा हो रहा है, जैसे कि प्री हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू हो गया, तो मैं खुद से भी ज़्यादा डिसिप्लिन हो गया हूँ। मतलब सुबह उठ नींद खुल जाती है, रात को टाइम पे नींद आ जाती है। तो आई थिंक व्हेन गुड थिंग स्टार्ट हैपनिंग इट डिसिप्लिन्स यू, एंड व्हेन कुछ अच्छा नहीं हो रहा होता तो नींद भी नहीं आती रात को। तो फिर हाँ, तो वो है मतलब पहले आप प्री निकाल लो तो फिर वो मेंस लिखने का मोटिवेशन आपको डिसिप्लिन कर देगी। ओके, तो डिस्ट्रैक्शंस भी साइड हो जाए। आपने इंटरव्यू के लिए, आपके मार्क्स इंटरव्यू में अच्छे रहे हैं, पहले अटेम्प्ट में बहुत अच्छा था आपका, इस बार अच्छा था, बट मे बी अनदर 15-20 मार्क्स मोर। सो व्हाट वाज द स्ट्रेटजी फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन? I personally realized 3 things which is very important for interview. First one is you need to be very articulate. मतलब इंग्लिश में ही बोले, मतलब मैंने ये नोटिस किया है कि they are very generous, like they let you speak in Hindi also in between. But the thing is you should not be ambiguous in what you want to say. मतलब आप जो कहना चाहते हैं वो पूरा कन्वे करो। क्लैरिटी इन थॉट एंड आर्टिकुलेशन वो होना चाहिए। दूसरा कि अवेयरनेस अबाउट द वर्ल्ड एंड अवेयरनेस अबाउट योर सेल्फ। मतलब आपको खुद के बारे में भी पता होना चाहिए कि क्या you are as a person, what your strengths are. Okay. हाँ, एंड कभी कभी वो
इंटरव्यूअर ना एक साथ में 4 सवाल पूछेंगे इन वन गो, and they will check whether you are attentive or not, whether you remember that sequence of questions, or then they will say okay, there will be a long monologue for some 30 seconds. For 30 seconds interviewer would speak and then he will let you speak. तो वो 30 सेकंड तक ध्यान से सुनना होता है कि क्या सवाल था, अलर्ट रहे हैं। ओके, तो वो हो गया अवेयरनेस अबाउट योरसेल्फ एंड अबाउट द। और थर्ड होता है कि लाइक ऑन दैट मोमेंट भी थोड़ा सा अपने आप को चेंज करना होता है, बिकॉज जैसे मैंने 3 इंटरव्यू दिए यूपीएससी में, 2 तो सीएससी का और एक सीएपीएफ का भी दिया था। अलग अलग मेंबर्स का अलग अलग एक्सपेक्टेशन होता है, टेम्परामेंट होता है, तो उस हिसाब से एडजस्ट करना भी जरूर, मतलब ऑन दैट 30 मिनट यू नीड टू बी वेरी मैनेज एवरीथिंग प्रॉपर्ली। हाँ, चेंज इन योर अप्रोच, वो सब मतलब। एक्सेलेंट एक्सेलेंट। अच्छा, आप बताइए अब कि ज्योग्राफी ऑप्शनल, यू हैव गॉट वेरी गुड मार्क्स, 295 मार्क्स, तो आपने क्या किया था उसमें? व्हाट डिड यू डू टू गेट गुड मार्क्स? व्हाट वाज योर अप्रोच? व्हाट डिड यू प्रैक्टिस? हाउ यू डू इट? So in my first attempt when I got 228, so I talked to many of my seniors. So I realized कि I write a lot of generic answers. So when I thought कि how to make it into geography specific answers, I realized I was lacking the touch of geography, that accent of geography. So for that I started reading standard textbooks. Like for example, if there was a question this year only on migration, कि मतलब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में रीसेंट स्ट्रीम ऑफ माइग्रेशन पे कुछ बात करनी है, तो मुझे याद है कि माजिद हुसैन सर ने अपनी किताब में लिखा है कि हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन कैन बी समड अप एज ए स्टोरी ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू द अदर पार्ट इन सर्च ऑफ बेटर प्रोस्पेक्ट्स। तो ये जो लैंग्वेज है ना, ये दिखाता है कि दिस इज समथिंग वेरी स्पेसिफिक लैंग्वेज। मतलब एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, और ऐसे जनरल में तो हम माइग्रेशन को कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं पुश एंड पुल फैक्टर के थ्रू। तो ये जो स्पेशलाइज्ड वे ऑफ राइटिंग ज्योग्राफी आंसर्स, इट कम्स थ्रू ए स्टैंडर्ड बुक्स ओनली, जो सविंदर सिंह में है, जो माजिद हुसैन में है। तो वही मतलब प्रिपरेशन के दौरान वी शुड फोकस मोर ऑन स्टैंडर्ड बुक्स, डायरेक्ट वी शुड गो टू द प्राइमरी सोर्स रादर दैन लाइक। तो आप किताब के साथ पढ़ते थे? हाँ, एग्जैक्टली। और आंसर राइटिंग में आपने क्या, कैसे स्ट्रक्चर किया, कैसे फॉर्मेट किया अपने आंसर्स? हाँ, मतलब इस बार मैंने डायग्राम्स, मैप्स, ये सब पे बहुत फोकस किया। मतलब जैसे मैं अगर 10 नंबर का पेपर है तो पहले से सोच के ही जाता था कि फर्स्ट पेज के सेकंड पार्ट में मैं एक मैप बनाऊंगा, तो बिफोर स्टार्टिंग द आंसर मैं वहाँ एक बॉक्स बना देता था कि ये वाला एरिया मुझे मैप के लिए रखना है, मतलब बिफोर स्टार्टिंग था। क्योंकि होता क्या है कि जब बहुत ही आदमी इंस्टिंक्टिवली लिखता है, 7 मिनट में 10 नंबर को करने हैं, 10 मिनट में 15 नंबर और 14 मिनट में 20 नंबर, तो जब आदमी लिखना शुरू होता है ना तो भूल जाता है कि हमें यहाँ मैप लगाना था यहाँ। तो मैं देखा कि 20 नंबर का सवाल है, तो 20 नंबर में 4 पेज हैं, तो मैंने डिसाइड किया कि सेकेंड पेज के नीचे वाले कॉर्नर पे एक मैप होगा, तो मैं वहाँ एक बॉक्स बना दिया। फिर डिसाइड किया कि चौथे पेज पे मेरा एक होगा यहाँ पे मैप, ये वाला वर्ल्ड मैप, तो वहाँ एक बॉक्स बना दिया और फिर लिखना शुरू किया। ओके, तो आप अपने मैंने स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ कि कैसा प्रेजेंटेशन पहले से हो, कैसे वो पहले से बना लेते थे आप? हाँ, क्योंकि वो जो क्वेश्चन आया है उसको तो मैंने कहीं ना कहीं PYQs में देख किया है उस थीम से रिलेटेड। तो व्हेन आई स्टार्ट राइटिंग आंसर, तो मुझे पता ही है कि ये सवाल तो आया है पहले इससे रिलेटेड, तो इसका आंसर कैसा होगा, कहाँ पे, मतलब उस बुक में कहाँ पे कौन सा मैप यूज़ हुआ है, तो वो पहले ही मैं कर लेता था। क्योंकि लिखने टाइम में फिर वो। और आप डेटा भी यूज़ करते थे? डेटा, केस स्टडीज़? हाँ, केस स्टडीज़ तो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया, बट हाँ किया था, बट थोड़ा कम किया था। बट डेटा भी यूज़ मतलब बहुत ज़्यादा, लेकिन मैप मैंने बहुत बनाया था इस बार। मैप्स बनाया आपने? हाँ, क्या रीजनल मैप्स या वर्ल्ड मैप, कैसे टाइप के? वो सब बनाया था। जैसे माइग्रेशन वाले में जो मैंने पूरा वर्ल्ड का बना दिया कि कैसे इंडिया से ऑस्ट्रेलिया गया, इंडिया से यूरोप गया, यूरोप से कैसे ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड के थ्रू, तो वो मैंने जब माइग्रेशन वाला क्वेश्चन देखा तो पहले ही वर्ल्ड मैप बना दिया और वहाँ एरो से दिखा दिया उस तरीके से। ओके, और आपको पेपर 1 आसान लगता है कि पेपर 2 आसान लगता है? मुझे पेपर 1 आसान लगता है। पेपर 2 में क्या दिक्कत होती है? पेपर 2 में वही दिक्कत है सर, मैं GS टाइप के आंसर लिख देता हूँ। ओके, तो दैट डिफिकल्टी ऑफ मेकिंग इट ज्योग्राफी स्पेसिफिक इज समथिंग वेरी डिफिकल्ट, तो इसलिए डिफिकल्ट। अदरवाइज तो आंसर तो सबको पता है, पेपर 2 के क्वेश्चंस के आंसर तो सबको पता है, बिकॉज काफ़ी कुछ जेनरिक टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। हाँ। तो अब जैसे इस बार मुझे पेपर 2 में 145 आए,
जबकि मैंने एक ट्रिक यहाँ पे और भी, मैंने पेपर 2 में मैप के 5 क्वेश्चंस नहीं किए थे। अच्छा। हाँ, तो मुझे लोगों ने बोला कि यार वो तो तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन होता है, तुमने किया नहीं तो वो तो दैट विल गिव यू अ नेगेटिव इंप्रेशन कि भाई आगे तेरे को नंबर कम मिलेंगे। बट वो मैंने जानबूझ के किया, क्योंकि होता क्या है कि जब आपको कोई सवाल नहीं आता और आप ब्लफ करते हो तो टाइम वेस्ट होता है, एंड दैट ऑल्सो गिव्स अ वेरी रॉन्ग इंप्रेशन कि यार ये झूठ लिखा है। जो आता है उसको बहुत अच्छा लिखो। हाँ एग्जैक्टली। तो ये जो 2-3 उटपटांग सवाल होते हैं पेपर 1 में या पेपर 2 में, उसको आप कैसे मैनेज करते हो, छोड़ ही देते हो आप? नहीं, इस बार तो फॉर्चुनेटली वैसे सवाल नहीं थे, मुझे सारे सवाल आ रहे थे, मतलब वेरी गुड। हाँ, मतलब वो मैप को छोड़ के सारे सवाल के बारे में आई हैड फेयर आइडिया। 2021 में मुझे 2 सवाल नहीं आ रहे थे। अच्छा। पेपर 1 के जो 10 मार्कर्स होते हैं, और मैंने वहाँ ब्लफ किया था, मतलब ऐसे कुछ लिखा था। तो now you realize कि that doesn't help really. हाँ, there was a question ना कि when growth is sustained for long time, it integrates with space time economy, ऐसे करके एक क्वेश्चन था। Yes, yes. And I had no idea, तो मैंने कुछ लिख दिया था, बट वो गलत लिखा था, बाद में रियलाइज हुआ। तो you recommend that bluff ना करो। हाँ, जो आता है वो अच्छे से लिखो, मैप और डायग्राम के साथ में, एंड शुड गेट गुड मार्क्स देयर। और जैसे मैंने ये भी सुना है कि जो इवेलुएटर होते हैं, दे आर जनरली द सीनियर प्रोफेसर्स ऑफ वेरी रिप्यूटेड यूनिवर्सिटीज ऑफ दिस कंट्री। सो जो सीनियर प्रोफेसर्स होते हैं ना, दे आर वेरी ट्रेडिशनलिस्ट इन देयर अप्रोच, तो वो थोड़ा मतलब दे वुड गेट एंग्री व्हेन यू दे सी द ब्लफ टाइप के आंसर्स मिले उनको। मार्वेलस। अच्छा, ये बताइए कि आपका जो अप्रोच रहा है फॉर जीएस में, ऑफ कोर्स यू कैन इम्प्रूव देयर, बट जीएस का कोई स्ट्रैटेजी था आपके पास, कैसे पढ़ना चाहिए जीएस? जीएस का तो सर मैंने बहुत ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ में ही मैं रिलाई किया था, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ मैंने सोचा कि अगर मतलब मेरा यही टारगेट था कि अगर जीएस में 400 आ गए और ऑप्शन में 300 आ गए और एसए में 100 भी आ गए तो 800 हो गए, और इंटरव्यू में 180 तो 980, इतने में तो आईएएस मिल ही जाएगा। तो मैंने बहुत ज़्यादा ऑप्शनल जीएस में काम मतलब वो नहीं किया। मैंने सोचा कि जीएस में तो मैं कैसे भी लिखूँगा तो 100 नंबर तो आ ही जाएंगे, क्योंकि लास्ट टाइम भी आ गए थे, तो बट वो बैक फायर कर गया। तो मतलब इट्स लाइक कि मैंने ये सोचा था कि सारे पेपर कंप्लीट, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। मैंने लगभग 50 इंट्रो लिख लिया था, 50 कंक्लूजन लिख लिया था। तो पहले से लिख के गए थे आप इंट्रो टू कंक्लूजन? हाँ, मतलब वो मैंने नोटबुक में बनाया था। कि जैसे अगर मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, एंशिएंट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है तो कैसा इंट्रो होगा, लाइक आई स्टार्ट विद, जैसे कोई अगर टेम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आई वुड स्टार्ट विद राइटिंग कि इंडिया हैज़ वेरियस किंगडम्स हु हैड पैट्रोनाइज्ड आर्ट एंड कल्चर एंड टेम्पल्स हैव बीन पार्ट ऑफ इट, ऐसे करके। मतलब ऐसा इस तरीके से मैंने 10 एंशिएंट हिस्ट्री के इंट्रो बनाए हुए थे। ओके। मॉडर्न हिस्ट्री के अगर कोई क्वेश्चन है तो मैंने वैसे, तो इंट्रो कंक्लूजन तैयार होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए किसको कहाँ फिट करना। वो बैकफायर भी करता है, बट दैट इज़ द शॉर्टकट। दैट इज द शॉर्टकट। हाँ, बेसिकली मुझे जो लग रहा है आपसे बात करके कि यू हैव बीन अ वेरी थिंकिंग स्टूडेंट, नॉट रैंडमली जो कोई पढ़ा, ऐसा नहीं। आप सोच के, आप एक डिलिबरेट प्लान करके, यू हैव अ स्ट्रेटजी। इट कैन गो रॉन्ग समटाइम्स, बट इट इज़ नॉट मैकेनिकल प्रिपरेशन कि कुछ भी उठा कर पढ़ लिया। हाँ, मतलब क्योंकि यूपीएससी है ना, तो इट्स स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम, मैंने और भी बहुत सारे एग्जाम्स दिए हैं ना, मतलब सीएपीए, वीपीएफओ, स्टेट वाला भी। तो यूपीएससी इज़ यूनिक बिकॉज यूपीएससी हमेशा क्राउड से आगे रहती है। मतलब यूपीएससी तो ahead of the times। हाँ, तो थोड़ा सा मतलब यूपीएससी के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इतने खूबसूरत होते हैं। जैसे मेंस में जो क्वेश्चन था कि जो पुरवैया जो गाना है, मतलब वो तो मेरे मतलब आई कैन नेवर फॉरगेट दैट क्वेश्चन। जीएस1 में जो एक क्वेश्चन था कि जो भोजपुरी रीजन में पुरवैया विंड जो है, उससे रिलेटेड बहुत सारे वहाँ पे आर्ट लिटरेचर कल्चर को उसने इन्फ्लुएंस किया है, इफ़ यू कैन रिमेंबर दैट क्वेश्चन। सो मतलब मैं उसको आई फाउंड दैट क्वेश्चन वेरी ब्यूटीफुल। सो वो सिर्फ यूपीएससी ही कर सकती है, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो अब हमें समझने की ज़रूरत है कि आखिर यूपीएससी ने क्यों पूछा वो क्वेश्चन, और तो थोड़ा मतलब उसके ब्यूटी को, अगर हम यूपीएससी के क्वेश्चंस के लैंग्वेज की ब्यूटी को अप्रिशिएट करें तो द होल प्रोसेस बिकम्स वेरी एंजॉयबल। वेरी नाइस। आई हैव नॉट हर्ड मेनी पीपल से दिस। ज़्यादातर बोलते हैं क्वेश्चन सवाल मुश्किल है और फंसा देता है और यू नो इट ट्रबल्स, बट यू आर द अमंग द फर्स्ट पर्सन हु सेज कि क्वेश्चंस में इतना ब्यूटीफुल और इतना सुंदर तरीके से लिखा गया है, यू मस्ट अप्रिशिएट दैट। इट्स अनदर पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। आई सी यू एज वेरी ऑप्टिमिस्टिक मैन, a very deliberate man, a man who looks forward to
achieving something with ambitions. I think all of this has helped you come this far. Certainly. Very, very happy to be talking to you. And हमारे listeners and our viewers, aspirants must have learned quite a bit about you and must have really got motivated. Yes. आप जिस तरह से पढ़ाई करते हैं, जैसे आप सोचते हैं, any message you want to give our viewers, कुछ कहना चाहते हैं जो लगता है उनको मोटिवेट कर सकता है? First of all, again, I would feel very privileged to be given this opportunity to say, because I personally feel I'm not that privileged and I am not that able enough to suggest something. But still, if I have been given this opportunity, I would say that if you can enjoy this process, although this was my third attempt and I had also various instances where I was very frustrated, very much depressed, but I enjoyed this process of UPSC preparation. Like I have been preparing since last 4 years. So undoubtedly for the initial 2 years I was enjoying it a lot, and I would say the enjoyment in the process in the first 2 years only helped me a lot. And like I got 574 rank and I feel I could have got under 100 rank. But there were instances where I fumbled, where I couldn't make maximum out of given situations. So the thing is, whatever be the circumstances, there is always possibility to push yourself and punch above your weight, and if you can enjoy the process, you can make the maximum out of it. That's it. Thank you so much. So very, very inspiring. My wishes to you. हम सब की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं. Thank you. Be a great officer and I'm sure you'll inspire many more people. Thank you so much. Thank you.